These include physiognomy, phenology, stratification, abundance, sociability, vitality, and vigor. First of all, we'll take physiognomy. This is the general appearance of vegetation as determined by the growth forms of dominant species. Such a characteristic appearance can be expressed by a single term. For example, a simple look to such a community of plants where larger trees are dominant with some shrubs would tell that it is a forest. Similarly, on the basis of appearance, we can say whether the studied area is a grassland or a desert. फिजियोग्नोमी या स्वरूप वनस्पति का बाह्य प्रकटन जो पादप समुदाय की प्रभावी जातियों के वृद्धि रूपों द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे स्वरूप कहते हैं। स्वरूप को एक शब्द द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि एक समुदाय जिसमें झाड़ियों के साथ में विशाल वृक्ष प्रभावी जातियां हों तो प्रकटन के आधार पर कहा जा सकता है कि ये एक वन है या फॉरेस्ट है। इसी प्रकार अपीयरेंस के आधार पर पादप समुदाय के स्वरूप को हम ग्रासलैंड या मरुस्थल आदि शब्दों से व्यक्त कर सकते हैं। Then the second character we'll be studying is phenology. Phenology is the scientific study of seasonal change, that is, the periodic phenomena of organisms in relation to their climate. Different species have different periods of seed germination, vegetative growth, flowering, fruiting, leaf fall, seed and fruit dispersal, etc. A study of the date and time of all these events is known as phenology. Yeah, in other words, we can say phenology is the calendar of events occurring in the life history of a plant. These events are shown by phenograms. The figure shows a phenogram with 6 events or life stages in a plant. We can see the octahedral, which shows 1, 2, 3, 4, and 5, 6 points. First starts with germination, then second stage is vegetative growth, then third is flowering, then comes fruiting, fifth seed maturation, and the last stage culminates in death of a plant. घटना विज्ञान या आवर्तिता प्रत्येक जाति के जीवन इतिहास में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जैसे कि बीजांकुरण, पर्णों का झड़ना, फूलों का आना, फलों का बनना, बीजों का प्रकीर्णन इत्यादि। इन घटनाओं के समय व प्रक्रम के अध्ययन को घटना विज्ञान या फिनोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यवस्था एवं विविधता का अध्ययन किया जाता है। सभी पौधों के बीजांकुरण, वृद्धि, पुष्पन, फलन के समय में अंतर होता है। अतः घटना विज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक पौधे के जीवन की समस्त व्यवस्थाओं के संबंध में एक आलेख तैयार किया जाता है और जीवन के इन सभी घटना चक्र के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? घटना विज्ञान या फिनोलॉजी। Then comes the next point, stratification. Stratification is the way in which plants of different species are arranged in different vertical layers in order to make full use of the available physical and physiological requirements. Vertical projection is constructed and stature of the species may be plotted to find out distribution pattern of stem, roots, etc. of different species. Data on stratification are obtained by using a
बाइसेक्ट। वनस्पति का स्तरण या स्ट्रैटिफिकेशन। स्तरण एक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न जातियों के पादप उपलब्ध भौतिक एवं कार्यकी सुविधाओं या परिस्थितियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए उदग्र परतों में व्यवस्थित रहते हैं। पादप समुदाय में सभी पौधे समान ऊंचाई के नहीं होते हैं, अतः ऊंचाई की दृष्टि से भिन्न भिन्न पौधे भिन्न भिन्न स्तरों में व्यवस्थित रहते हैं। उदाहरण के रूप में किसी घने वन में पादपों के कई स्पष्ट स्तर पाए जाते हैं, जैसे कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले वृक्षों का स्तर, झाड़ियों का स्तर, शाकीय पौधों का स्तर तथा भूमि पर मांस, शैवाल और लाइकन का स्तर। ये स्तर एक निश्चित क्रम में पाए जाते हैं। कई स्तरों वाले वन को बहुस्तरीय वन या मल्टी स्टोरीड वन कहा जाता है। This is a representation of a complex deciduous forest community showing stratification, where 5 vertical subdivisions of different vegetation types, subterranean भूमि के नीचे, then forest floor, फिर herbaceous vegetation, then shrubs and trees. All these 5 can be easily distinguished in the figure. इस चित्र में हम वनों का बहुस्तरीय स्तरण देख सकते हैं। नेक्स्ट we will discuss abundance या बाहुल्य। पादप समुदाय में बाहुल्य पादपों की सघनता से संबंधित है, लेकिन बाहुल्य को परिमाणात्मक रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। पौधे किसी भी आवास में समान रूप से वितरित नहीं रहते, बल्कि छोटे छोटे समूह में जो संख्या में भिन्न होते हैं पाए जाते हैं। अर्थात एक क्षेत्र विशेष के भिन्न भिन्न पौधों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। पौधों की संख्या के आधार पर बाहुल्य की 5 अनुमानित वर्गों में विभाजित किया गया है। बहुत दुर्लभ वेरी रेयर, दुर्लभ रेयर, सामान्य कॉमन, आवृत्ति बहुल फ्रीक्वेंट, अत्यधिक बहुल मच फ्रीक्वेंट।